Done? Okay. So morning you learned about immersive content. You explored immersive content. Now you're going to create a immersive content. Okay? You're going to develop. Since there is a subscription, there is a money to be paid. In my phone, I have paid it for it. But I'm going to give you something. Then I'll show using my phone what you have created. Okay? But there are conditions for this activity which you need to strictly follow. You will be getting one. You are part of this team. Other three people. Who is the three people missing? You need to find out. Tomorrow attendance दो बार कर दो. So one person from each group should come forward. I'll give you a paper like this. Okay? एक एक group का एक एक दे दो. One person please collect it. They are giving. Every group should get randomly we are giving. Okay? Every group should have a paper like this. उनको प्लान सेल दे दो. मैडम वांट प्लान सेल. इनको एक. Right. So can I request everyone to look at me now? Right? There is a paper I have given. You have got a color pencil as well as a sketch packet with you. Okay. To just help this team, what we will do, one person can join here. Okay, because two people we will not be able to start. If latecomers are there, otherwise they will also. One more person just turn. Go. Stand up. No sitting. Not single person also not allowed to sit. Start. बोलो करो जहाँ पे भी करना करो बोलो 53 देंगे मेरे हाथ में है फास्ट फास्ट अरे कोई बाउंड्री बनाओ उस पे पेड़ की वो है बाउंड्री वाल पे नहीं है चलो कुछ कर दो Half the time is over. We'll give you 30 more seconds. सामने वही ये इधर ही करना है हो गया टास्क वास भी किया 30 मोर मिल रहे हैं फोटो खींच रहे तू फोटो बहुत टाइम लगा We have given you extra 30 seconds. झगड़ो नहीं यार बढ़िया करो हाँ भाई करो बढ़िया टेबल दे रखी आप लोगों को 13 12 11 मेरा बोर्ड मारना ये तो मैंने कब Done? Good. Time up. Now you can pack all the color pencils and give it to my team. शीट का पीछे आप सबको नाम लिख दीजिए पीछे पीछे लिख दीजिए बैक साइड में डोंट राइट एट द टॉप क्यूआर कोड नीचे है ना उनका डिस्टर्ब नहीं करो ऊपर लिख दो पीछे ऊपर बैक साइड राइट एट द टॉप डोंट राइट एट द बॉटम सो दैट नथिंग शुड इम्प्रेस ऑन द क्यूआर कोड हमें ऑलरेडी भेज
Enjoy their experience. ऐप डाउनलोड करनी है कौन है QUIVER क्यूबर एक आदमी हाँ वही सब आपका नाम लिखे पेपर्स मेरे पास प्लीज कलेक्ट द पेपर्स बैक Sir, papers. have you explored the Ajanta and Ellora already if you have not completed please complete it now next 1 minute you open Ajanta search go to caves okay you need to take the screenshot of which caves you are going for submitting as assignment so आप स्कैन करके 360 डिग्री टर्न करके चेक कर सकते by the time I connect this you people complete that Google Art and Culture नहीं हमें अभी करना है नहीं ये वो नहीं ये उसके लिए हाँ कुछ भी उनका screenshot or you can record a video also what you are seeing on the screen चिड़िया आ गई आ गई इसमें चिड़िया आ गई क्या चिड़िया आ गई वाओ अच्छा पहले ये कर okay can I request everyone to now sit and see the screen finished Google Art and Culture
Yes, ma'am. Please sit down. This is Rajesh, Surinder Singh, Sudhir Natyal. Which group it is? Okay. So I have just connected my phone. Ab sab baito. They are more excited than you. So Abhi, I have connected my phone on the screen. Okay, I am going to show what you have created. Right? Okay. So basically, this is the coloring paper they have done. Okay, so now let's check it out. आप देख सकते हैं एक्चुअली वेरी स्लो स्क्रीन में आ रहे हैं Mirroring position. He is going to play football. हमारा एक्चुअली कनेक्टिविटी थोड़ा ज्यादा स्लो है ये हमारा था कितना प्यारा लग रहा है हमारा वाला पेंटिंग है ये आपका नहीं हमारा भी अच्छा लगा सबका अच्छा लगेगा एक्चुअली थोड़ा स्लो सिंक हो रहे बिकॉज ऑफ द नेटवर्क so basically they have just painted this so now he will play football so you can hit the ball will go to the goal you can strike everything and practice this actually इनका monthly subscription होता है अभी it's 199 rupees per month का पहले 25 rupees था पहले free था but अभी ऐसा resource भी हम create कर रहे हैं right you can see now no even I'm not scanning still it's working because it's connecting little slow he can when you click on this ball he will hit this ball and goal भी जाते हैं so children can be given coloring like this and given so let's see the next one so this is by Amit Pankaj Amrit that group okay you have done animal cell I'm just going to show one or two here, but then I will show quickly in yours because it takes long time to sing. So I'll just show only one or two here, but then I'll come to the group and show, okay? Whatever I am showing as a video now, it can be recorded using this app also. You can record it as a video, whatever you are going to show. Actually, in my screen, it has come. It takes time to see. I have done all that. So it's taking time to show in your screen. Oh, animal cell. Great. In phone, it's so good, man. 3D. मैं zoom नहीं कर रहे. I am going inside it. Okay. I am not zooming. I am walking inside the nucleus. I am walking inside the mitochondria.
So that's how we can work. So what I'll give is, I'll show you in the team because this takes a longer time for us to do it. So you can pick up your sheet, I'll come to your place. If anybody is ready to invest 199 rupees, you can install this app in your phone. It's Quiver 3D coloring app. Quiver. If you have a payment version, sir. Yeah. Ma'am, yours is shown. Sir, this group, please come together. तो भाई भैया You just go to the internet, you can see Quiver coloring app. Quiver coloring, you just type it. This is Quiver Vision. That's a web page which will come. Here you have lots of coloring packs. They keep on adding every day. So spending 199 or 1000 rupees per year, we have a school subscription also. That is still cheaper. I have taken individual subscription. So that's why I have to pay 199. But they started with completely free. Over 3 years, last year it was 25 rupees. This year it has become 199 rupees per month. Okay. So there are lots of Indian companies now, they have understood it's a important thing that we need to prepare. So people are also preparing such content. Such kind of content, there are ways. If you have some technology oriented people, you can get created such content for subject also. So here packs are there, few sheets are free for you. See, to use it first, for a long time I never subscribed. I used to take free sheets and then do it only with the free sheet. It's basically to make people understand how immersive learning happens. Right? Everything will not work. Aapka state sometimes buy content. Even when the content is bought, they should know how it works. No? So to give an experience in your trainings, you can use such things. So you can take only free sheets. Out of the sheets we used, few are free. Okay, so if you can see here, there are 1 or 2, 3 sheets in this. When you open, this is like one sheet. Here 2, 3 sheets are free. Okay, so this is complete process of butterfly, how from cocoon it becomes butterfly. Stage wise it will be in a same way. So instead of we drawing on the board and teaching, when we don't have animation, when we even use animation, it is one way. We display it, people, but this will be more active. But more than that, you just think of two things. If you make a student to watch the screen, or you make people to physically do coloring, then you make them, what's the difference between both? Second one is more interactive. And More interactive. more People will engaging. be engaged. Students are engaging more senses. So they will You being adults, how happy you were when you colored and got that light. Right? amazed. So that is the kind of encouragement you can put in the children. Basically, this kind of activities will involve three things. Children will be physically engaged. Most of the time technology आने के बाद physical भूल गया. Right? Physical, psychological भूल गया. पूरा cognitive से focus करके पूरा content दे. कुछ भी करना है content दे. But maybe in your school all the children may not have a mobile. If you have tabs, you can use tabs. It can be made into 10 people in one group also. In many government schools, after our training, many people have started using this. There are many people explored by themselves, but at least those who are trained by us, they have started using. So what they do is, for that 10 minutes, 15 minutes, the friends' mobiles they bring. 2, 3 teachers, they just understand, okay, today my class, you give mobile. They just bring 10 minutes, they use it and then
Starting class, just 10 minutes to color, then do it, and then go ahead. It's very interesting. But हमारा इधर से एक important चीज भी सोचना चाहिए. When you use this immersive content, we need to be very clear about the age group to whom you are using. What happened is one of the SRG training, we just taught this to children. So in this actually you have series of animals also as a picture. So one of the Tamil Nadu ICT teacher was very excited after this. We also get excitement now. We like that. He also got very excited and he said, "Ma'am, I'm going to my children. We have in class 1, domestic and director. Actually, the session who has to take is caught by the director. Ministry team is here. So we'll wait for them to join. I'll see 10 minutes. Otherwise, I'll take the session. Just आप उधर ही stand करो so that उनका निकल सके. So this teacher was so happy that this is going to happen. So he asked me, Madam, please give us these printouts because first period itself I'll go and use. So Friday we finished. He took all the printout. Monday he went to school. First period he went and he recorded. He made arrangement for recording the session. He made given these papers to all the group of children. Made the group. He arranged for mobile. Then he was recording the whole class. And after the class, he posted that he's an English teacher also. Like usually he teaches English and the EVS part. So he was putting this post in the Facebook. He tagged all ministry because he's an awardee. So he tagged the minister, ministry, NCRT, everything. And he has written a very good write-up on it. He has written that how children were engaged. Children were, he has complete video recording, how children were engaged, how children were able to, in his all the previous classes, never all students got an assessment 100%. But after using this, all students got 100% in the assessment. So he has written point by point, what all we look pedagogically. Engaged learning, joyful learning, क्या क्या होना चाहिए, सब टिक मार्क कर दिया. Assessment में भी learning outcome भी reached है. Will we have anything to comment? So हम सब success, great, happy, इतना comments है, running. But 3 दिन का बाद वो टीचर हमको कॉल किया था, बता मैडम थोड़ा छोटा इशू है. क्या इशू है? In his class, one child came back next day to the class and came to the sir and asked, "Sir, can you give your phone to my house?" वो पूछा मेरा फोन आपका क्यों चाहिए? He said, "In my house there is my grandmother's picture hanging on the wall for long time." ये पेपर है ना, फोटो है, मैं फोटो आपका फोन से देखा है. एक्चुअली उनका एनिमल्स का फोटोज में साउंड आते हैं, देन कैरेट देते हैं, रैबिट कैरेट खाते हैं, ग्रास देते हैं, ऐसा एक्शन होता है. सो उनको लिविंग बीइंग क्या है? हु ब्रीथ, ईट, मूव. ऐसा ही हम सीखते हैं ना. सो ही सेड दे सेड माय ग्रैंडमदर इज डेड, बट आपका फोन देखने के बाद सब लिविंग बीइंग हो गया सर. सो आपका फोन दे दो. सो मैं मेरा दादी का भी देख देंगे. सो शी विल बिकम लिविंग because she can eat, she likes so much food. Sir, मेरा माँ भी कुछ अच्छा खाना बना रहा है, I can give it to her. This teacher got completely stuck. क्या करना है? एक चीज ये इंटरेस्टिंग है, दूसरा साइड में कैसा हैंडल करना. सो हमारा सेशन में ऐसा एप्स एंड इंट्रोडक्शन देने के टाइम एज एजुकेटर्स हम ये भी बताना चाहिए सब टीचर्स के लिए, कुछ नया चीज लेके क्लासरूम में जाने के पहले अब सोचना है ये सब डोमाइंस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है. सो इमोशनली क्या हो सकता है, फिजिकली क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकली कैसा हो सकता है, ये पूरा सोच के क्लासरूम में लेके चलो. सो दे हैव टू गिव सम डिस्क्लेमर्स, right, so that you can set up the presentation, so that like no the students are उनका presentation on करके set up कर दो. So that is where we need to be very clear about this. I'll also share one more scenario, okay, till they set up again. Pratik, you can set up the presentation. Already we have lost some time, so थोड़ा आप quickly wind up कर. to give the demo of Diksha. You wanted to use any presentation? No. ठीक है, then you open everything. So the other scenario is during pandemic, all the teachers started using Zoom, Google Meet, right? So one of the ICT awardee, he shared this in our teacher conclave.
वो Zoom यूज किया for online class for the foundational like preparatory stage students, maybe like sorry foundational, maybe first and second standard students ka he was using Zoom and he was teaching. At that point of time is where the Zoom started getting avatar, right? एक feature आया था avatar. Instead of showing your face you can show something. So this teacher what he did during the class, he changed his face to an avatar. The moment he changed, all the students started screaming, crying, ran away from the class. So he didn't know what happened. What happened? All the students ran away crying. So he called some 2-3 persons, parents, and was asking, "Kya hua?" Students run kiya, kya ho gaya? So then the parents were also not understanding kya ho raha. Then thoda time ka baad parents call करके बता दिया. Actually during pandemic all were at home. The only thing which they were attached was the TV. In the TV, when they showed Corona, how they showed? एक गोल वाला ऐसा ऐसा स्पाइक्स है उनका अच्छा शो करने के लिए ऐसा बात भी करते हैं. So the moment he changed the avatar, his face looked with spike, mouth, all that, and he was not looking original. So this children started telling parents, मेरा teacher का कोरोना हो गया, he will die now. उनका वजह सब ट्राई करने के लिए शुरू कर. ठीक है. So sometimes हमारा टेक्नोलॉजी यूज ऐसा नहीं आना चाहिए without understanding the context. That's very very important. So now let's move to the afternoon first technical session, which is for us to explore. सब actually diet SCRT faculty है. You are already promoting Diksha use in your state. अभी आप सबको ऊपर एक responsibility भी आ रहा है. आप सब courses develop करना है आपका state के. आप courses develop करना है means that it has to come in Diksha. आपका ऑनलाइन कोर्सेज. सो अभी हमारा दिस ईयर वी हैव कम आउट विद द लर्निंग मैनेज. अभी सब मूडल में लॉग्ड इन है. यू आर सीइंग वन वर्जन ऑफ मूडल देयर. So this is our learning management system is there in the Diksha portal itself. Aaj maybe you are not part of the core team where you will be doing the content upload and all, but in future you may be coming in. So we have invited a team from the Diksha PMU to give us. Dr. Razaul is supposed to join, but I think the meeting with director is not yet over. So today ministry is reviewing Diksha, so the team is here. So in case if he is able to finish between the time, he will just come. I have invited him because आप सबको पहले एक चीज पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में कौन सा प्रोजेक्ट का कौन कोऑर्डिनेटर है. ठीक है. अदरवाइज आप पूरा दुनिया का कॉल करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम. So I have called the respective coordinators to introduce to you so that आपका पता है या एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए. डॉक्टर रजाउल and Professor Indu Kumar पहले दिन आया था. वो दो both are the coordinators for Diksha. Professor Indu Kumar is an academic coordinator. Dr. Razaul is the technical coordinator. कुछ भी पोर्टल में प्रॉब्लम है आपका स्टेट में, सब स्टेट में एक एक दीक्षा कोऑर्डिनेटर है. वो दीक्षा कोऑर्डिनेटर्स हम हमारा साथ मंथली मीटिंग करते हैं. आपका कुछ भी प्रॉब्लम है आप आपका दीक्षा कोऑर्डिनेटर में बोलना चाहिए, वो हमको बता देंगे. सो वी हैव अ टीम ऑफ PMUs who are sitting to manage and work with Diksha. So Mr. Pradikrik is here, who is also part of the team. So he will be taking you through the Diksha portal learning management system. On kar diya. Good afternoon, everyone. I am Patrick. I am part of the Diksha PMU team और हम दीक्षा प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं यहाँ से फ्रॉम एनसीईआरटी. और आपके स्टेट्स के साथ भी हम लोग बात करते हैं रेगुलरली. जो अभी दीक्षा एलएमएस नया बना है, ये मॉडल के ऊपर बना है. और So before starting, I'm sorry to interrupt you. Before this, anyone can do the Diksha course. After Yes. converting the LMS, like in LMS Moodle, those who are enrolled and something like so, it is going to happen like that. मैं बता देता हूँ. अभी पुराने दीक्षा में जहाँ पे भी आपका एनरोलमेंट था, that will continue. बट जो अभी बंद हो गया था, that we have shut down. अभी सिस्टम में नहीं है.
और हम स्टेट्स को बोल रहे हैं कि अगर ऐसा लगता है कि दोज आर लाइक गुड कोर्सेज, दे कैन ब्रिंग इट टू द न्यू यस, एरियाज। कंटेंट क्लीनिंग का काम हम लोग कर रहे हैं, जी। तो उसमें हम लोगों ने ये चीजें की जी हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक लॉग इन रजिस्ट्रेशन, ये तो आई थिंक यू आर वेल अवेयर कि उसमें इश्यूज भी हैं। आई एग्री। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और इफ वी लॉग इन, let me give my user ID as a user. तो लॉग इन करने के बाद हम यहाँ पे दीक्षा कोर्सेस एक न्यू नया टैब हम देख पा रहे हैं, और ये हमारा पुराना वाला है। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दीक्षा कोर्सेस, तो ये हमें वो नया हमारा प्लेटफॉर्म जो मॉडल पे है हम उस पे लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये पर्सनलाइज्ड एकदम वो आपका हो गया है, मतलब हर पर्सन का ये हो गया है जो हाँ, कोर्स करेगा जी जी। उसका पर्सनलाइज्ड हो गया है। और ये आप एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे, पहला जो ओपन होता है मेरा लैंडिंग पेज, वो एक्सप्लोर कोर्सेज पे आके लैंड हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज जो एनसीईआरटी ने बनाए हैं, अराउंड 50 के ऊपर कुछ कोर्सेज एनसीईआरटी का भी लाइव है। और भी स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम का भी एक कोर्स अभी ऑन है। कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा ने भी अपना कुछ कुछ कोर्सेज चलाए थे। दीक्षा 1 पॉइंट के ही कोर्सेज यहाँ पे कॉपी हुआ था, स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिवीजन कोर्सेज था, तो वो अभी खत्म हो गया। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे स्टेट, सारे दीक्षा यूनिवर्स के सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे फिल्टर कोर्स, जहाँ पे आप कोर्स के रेटिंग के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, और बोर्ड मतलब कौन से टेनेंट वाला या कौन से स्टेट का आप कोर्स देखना चाहते हो, उसके हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो इसको सॉर्ट करना है कि मेरा न्यूएस्ट क्या है, ऑलरेडी जो भी न्यू कोर्स आता है वो सबसे ऊपर दिखाता है, लिस्ट ड्यूरेशन, हाईएस्ट रेट और मोस्ट रेलेवेंट। इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकन भी है। ये होता है कि जैसे आप कोई भी कोर्स में एनरोल करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप का आएगा कि आप इस कोर्स में एनरोल किए हो। और अगर उस कोर्स में आपने एनरोल करने के बाद 3 या 4 दिन तक कुछ काम नहीं किया, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा कि आपका बचा है। और बाकी जैसे कुछ भी कोर्स है जहाँ पे आपको असेसमेंट देना है, तो उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आएगा कि और 1-2 दिन में आपका बैच एंड हो जा रहा है, आप अपना कोर्स और असेसमेंट कंप्लीट कीजिए। फिर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज का एक ऑप्शन आता है। तो ये जो ट्रांसलेट दिस पेज है, ये भाषिनी के साथ हुआ है। भाषिनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो डीआईसी के साथ इन लोगों ने बनाया है। तो ये 22 लैंग्वेज में आपका पेज, जो वेब पेज है, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके साथ अगर कोई टेक्स्ट मटेरियल है, जैसे आपका कोई पीडीएफ हो या पीपीटी हो, वो भी उसी लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं हिंदी में, ये 10-20 सेकंड टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड। फिर वो आपका धीरे धीरे हर एक टैब, इंटरनल मटेरियल्स जो भी है वो ट्रांसलेट कर लेगा। जैसे यहाँ पे तो हो गया, ये भी आ जाएगा अभी। अपना लॉगिन करना पड़ेगा। जी सर, वो 60% के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब एकेडमिक आ रहा है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरने के लिए आ रहा है, तो नीचे आता है कि आप सब वर्क रोल क्या है आपका। तो हमने डाइट मेंटर लिखा, देन डिस्ट्रिक्ट है, देन ब्लॉक है, देन स्कूल। स्कूल तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं।
मैम आपके जी जी आपके लिए, क्योंकि आप टीचर्स नहीं हो तो आप ऊपर जो वाला पार्ट है ना उसमें आप अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हमने ये डिस्कशन हो गया काफी, मतलब एक्सटेंड मतलब प्रोग्रेस में है, हम ये सब चीजें थोड़ा हटा रहे हैं क्योंकि मतलब मेजर में ऐसा हो गया कि जैसे हम रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल चला रहे हैं रादर देन लर्निंग के लिए। तो ये हो रहा है। तो ये हमने काफी हाँ मिनिस्ट्री के साथ भी डिस्कस किया कि ये नहीं हो पा रहा है, और अगर रैदर किसी स्टेट को चाहिए अब एनी वे मतलब कितना भी बोले फिर एंड ऑफ द डे हमें भी कुछ रिजल्ट दिखाना पड़ता है। तो हम बोल रहे हैं कि स्टेट्स को बोल रहे हैं कि आप एसएसओ लॉगिन लेके आओ, आपके इंटरनल अगर कुछ पोर्टल है जो ऑलरेडी टीचर्स लॉगिन करते हैं, जैसे आपके एचआर वाले या सैलरी वाला कुछ कुछ पोर्टल होता है ना कुछ स्टेट्स में, या आपका आप अपना अटेंडेंस भी देख पा रहे हो जहाँ पे आप रेगुलर लॉगिन करते हो, सेम उस चीज के साथ दीक्षा को हम जोड़ दें। जैसे अभी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये लोग करते हैं, उनके जो अपना पोर्टल है जहाँ पे वो लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स वाला पोर्टल है जहाँ से वो लोग रेगुलर लॉगिन करते हैं, उसी सेम लॉगिन वो लोग यूज करते हैं दीक्षा के लिए। हाँ, और एक चीज मैम ने अच्छी चीज दिखाई कि अगर जब तक आपका अभी अगर आपका प्रोफाइल 100% नहीं है तो आपका दीक्षा कोर्स वाला वो टैब भी नहीं दिखेगा आपको करना। कंप्लीट क्या करना सर इसमें? हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल क्या कंप्लीट करना है? सबको डाल तो दिए, पिक्चर भी डालनी है? नहीं 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 पिक्चर नहीं डालनी। जैसे मैं अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ, मेरा ये वाला पर्सनल डिटेल्स वाला पार्ट हो गया, फिर एकेडमिक डिटेल्स में मैं अपना रोल आप लोगों के लिए आप अदर्स सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपके लिए ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब रोल ये तीन मतलब एज अ स्टूडेंट मेरे लिए मैंडेटरी है, आपके लिए अलग होगा। वापस जा रहा हूँ दूसरा कोर्स, लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं इंग्लिश। फिर आपका होता है कि आप एनरोल कैसे करेंगे, यहाँ पे जो भी कोर्स दिखेगा आपको बस क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स दिखेगा कि ये कोर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, कि किस टॉपिक के ऊपर है ये कोर्स। अगर आपको लगता है ये आपके लिए मतलब यूजफुल है तब आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे एनरोल कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अभी मेरे को मेरा ये माई लर्निंग वाले सेक्शन पे ले गया। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैं माई लर्निंग वाले सेक्शन पे आ गया, तो ये बोल रहा है कि मेरा ये एरिया है जहाँ पे हम सारे कोर्सेज को एनरोल किया है। तो अभी के लिए मेरे पास एक ही कोर्स है तो मैं एक ही देख पा रहा हूँ। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आपको फिनिश्ड कोर्स के अंदर दिखेगा। तो इन केस आपको ऐसा लगता है कि दोबारा आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है जो कोर्स आपने कर लिया, आपको फिनिश्ड कोर्सेज के अंदर जाना है। और कोर्स करने के लिए ऑनगोइंग कोर्सेज वाले सेक्शन पे आप बस कोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। दीक्षा कोर्सेज में जी फिर क्या करना है? आपने वो स्टैप पे क्लिक किए, कौन सा? अभी तो 100% हुआ सर हमारा ना। हाँ हाँ अभी आप देखिए दीक्षा कोर्सेज बोल के एक टैब आएगा ऊपर, हाँ आ गया। हाँ उस पे आप क्लिक कीजिए। बिटा करके जो हाँ हाँ जी जी कुछ नहीं दे रहा सर। नहीं खुलेगा सर, गौरव देख लो। तो
सो अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है कि यू हैव बीन एनरोल्ड इन द कोर्स। फिर यहाँ पे कुछ कुछ टैब्स हैं जहाँ पे एक बोलता है कि अबाउट द कोर्स, कोर्स के बारे में कि कौन कौन से लेसन है। जैसे यहाँ पे एक प्री टेस्ट है, मॉड्यूल 1 है, 2 है, पोस्ट टेस्ट है, फिर एक सर्टिफिकेट है। उसके बाद आता है मेरे पास लेसन्स टैब जहाँ पे आप बेसिकली उसके मॉड्यूल है कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा, फिर मॉड्यूल हो रहा है। और अभी आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा पुराने दीक्षा से ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो हम वो प्री रिक्विजिट सेट कर पा रहे हैं कि जब तक आप प्री टेस्ट नहीं देंगे आप यूनिट 1 2 ये नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कौन सा आप करेंगे, तब मतलब प्रीवियस कौन सा है उसके बाद आप कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ये भी कुछ फीचर्स है, जैसे वीडियोस है, आप आगे एकदम से बढ़ा के आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको कम से कम एक बार पूरा कंप्लीट देखना है। पीछे आप मतलब स्क्रॉल बैक आप कर सकते हैं, बट स्क्रॉल फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट वंस आपको करना है। और उसके बाद अगर कुछ असाइनमेंट्स हैं तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा, वो आपको लेसन्स के अंदर भी दिखेगा। अगर आप अलग से भी देखना चाहते हैं तो असाइनमेंट्स वाले टैब पे दिखेगा। इस कोर्स के लिए है आपके असाइनमेंट्स, बट अभी ये ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ मॉड्यूल आपको करना पड़ेगा, प्लस डेट भी है। डेट हालांकि यहाँ के लिए अवेलेबल है, बट जब तक आप कुछ एक मॉड्यूल नहीं करेंगे ये आपके लिए ओपन नहीं होगा। फिर जो आप प्री टेस्ट या असेसमेंट आप देंगे उसका अगर स्कोर्स आपको देखना है तो आप ये स्कोर्स वाले सेक्शन पे देख सकते हैं। और उसके बाद ये कोर्स अपडेट्स बोल के एक सेक्शन है जहाँ पे अगर क्रिएटर है आपके स्टेट्स में, मान लीजिए अगर कोर्स के बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स देना है कि फॉर एग्जांपल हम एनसीईआरटी से देते हैं कि एक नया मॉड्यूल ऐड हो गया, कि आपका डेट्स एंड होने वाला है, या एक छोटा सा और सर्वे फॉर्म आ गया जहाँ पे आप अपना सर्वे डाल दीजिए। तो इस तरीके से आज दीक्षा में मैं बाद में आता हूँ। कोर्स डिस्कशन एक है, एक फोरम टाइप का है, एक हाँ ये है। बट ये अगर जब तक क्रिएटर एंड से स्टार्ट नहीं होगा आप अपने एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, स्वयं पे तो सर वो होता है कि यहाँ पे हमने नहीं रखा क्योंकि ऐसे ही चालू हो जाता है। एक बार मैं सर का देख लेता हूँ। ये अच्छा किया आपने ऐड करके, ये हम लोगों ने सजेशन दिया था। बोर्ड आपका अदर सिलेक्ट
हाँ, अभी आप आ गए दीक्षा कोर्सेज के न्यू प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कोर्सेज में अगर आपको कोई कोर्स करना है, जो कोर्स आपको करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक इनरोल बटन है। और उसके बाद अगर आपको ये कोर्स शेयर करना है किसी के साथ, तो यहाँ पे एक शेयर कोर्स वाला ऑप्शन है, आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे शेयर कोर्स होता है। तो शेयर कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और आप ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, मतलब आपने कोर्स किया, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, आप टीचर्स में रेफर कर सकते हैं। एआई के सर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आए हैं। मैंने किया आर्टिफिशियल जी, और एक युवा एआई करके भी एक आया है। अच्छा हाँ, वो भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, उसके बाद आता है सर डैशबोर्ड वाला पार्ट, जहाँ पे आप अपनी लर्निंग ट्रैक कर सकते हैं। और लर्निंग ट्रैक के साथ एक सर लीडर बोर्ड भी हमने डिजाइन करवाया है यहाँ पे। अच्छा डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे, संजय सिंह नहीं मोबाइल पे है, मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ थोड़ी देर। इसमें भी मोबाइल में भी दिख रहा मोबाइल है। में भी है। मोबाइल में दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका कुछ कुछ क्राइटेरियाज है। क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि आप जितना कोर्स कंप्लीट करेंगे बस आवर्स पे नहीं है। आप कितना आ रहे हो, कितना लॉगिन कर रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम कोर्स थोड़ा सा बाकी कोर्सेज भी देख रहे हो, कितने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया के ऊपर आपके पास ये पॉइंट्स क्रेडिट्स आएगा, उसके बेसिस पे आप लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे आपकी लर्निंग आवर्स भी दिखाई देगा। और एक सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मतलब एक हमने यहाँ पे किया है कि आपको अगर हेलो बोलना सीखना है अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो ये छोटा सा है कि अगर आपको मलयालम में मतलब हेलो बोलना है तो आप नमस्कारम बोलेंगे। अगर आप इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये अलग लैंग्वेज में दिखाएगा आपको, जैसे इट्स इन बंगाली सेइंग इन नमस्कार, इस तरीके से। क्या नाम है सर? नाम डॉक्टर मिर्जा वसीम। इन संताली से जो है ट्रांसलेशन है। नहीं वो एक शब्द दे रहे हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग के पास नमस्ते बोले ग्रीटिंग करना है तो उर्दू में कैसे? और यहाँ से अगर आपको वापस जाना है दीक्षा के अंदर, तो आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने पर आप वापस चले जाएंगे दीक्षा। इसके साथ यहाँ पे एक और फीचर हमने किया है, पैल फीचर दीक्षा के अंदर ही, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए है। अभी क्लास 9 और 10th मैथ्स और साइंस के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो इसमें क्या है कि हमने एनसीईआरटी के जो साइंस और मैथ्स के बुक्स हैं, हर एक चैप्टर के कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने कंटेंट मैप किया है। तो वो इस तरीके से चल रहा है, जैसे चैप्टर 1 के 1.1 सेक्शन में मैंने कंटेंट देखा, उसका एक मैंने असेसमेंट दिया। असेसमेंट देने के बाद मैं मैप कर पा रहा हूँ कि उस स्टूडेंट ने कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे सही आंसर नहीं दिया, उस पे मैं उसको एडिशनल कंटेंट का भी और ऑप्शन दे रहा हूँ। तो उस तरीके से अब स्टूडेंट्स, हाँ मैं स्टूडेंट्स को भी आप प्लीज बताइएगा। अगर मैं फिल्टर कर लेता हूँ +10 की, तो सर साइंस और मैथ्स के दो कंटेंट है, और 9th के भी साइंस और मैथ्स के ऊपर है। ये स्टूडेंट अपने लॉगिन से करेगा सर? जी जी गुड। हाँ, ये मतलब काफी मेहनत लगा है कि हमने हर एक एलो को अलग अलग करके मैप किया। हर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट पे छोटा छोटा 2-2 3-3 मिनट्स का वीडियोस है। हर एक असेसमेंट जो है वो भी 3 क्राइटेरिया पे है, इजी मीडियम हार्ड के ऊपर। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स को एसेस करके बता रहे हैं कि आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, आप दोबारा सेम वीडियो देखिए या कुछ और एडिशनल मटेरियल से उसको भी दिस मैसेज विल ऑटोमेटिकली गो टू द स्टूडेंट आफ्टर द असेसमेंट। बिल्कुल वो फ्लो में चलता रहेगा।
जैसे मैंने क्लास 10 साइंस खोला, तो ऐसे 4 कोर्सेस है साइंस और मैथ्स के, क्लास 9 और 10 के। अभी के लिए इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए अब हम बना रहे हैं कंटेंट। बाकी 6 to 8 का भी टारगेट है इसी साल तक आ जाने का। तो ये सिर्फ एनसीईआरटी के कंटेंट के ऊपर है, बाकी कुछ और स्टेट्स को भी हमने कहा है, वो भी अपने लेवल पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सेम है, अभी हम फिर से जाएंगे लेसन्स में। लेसन्स के जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मल जो एलएमएस के चीजें मैंने आपको दिखाया, एक मॉड्यूल है, फिर एक असेसमेंट है। इससे थोड़ा सा हटके आप देखिए, पहला ही आ रहा है मेरा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन। उसके सबसे पहले उनको एक सर ये प्री जो रिक्विजिट देना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए है, जी जी अगर मैंने लॉग इन एज ए टीचर किया तो इट विल नॉट शो। सर अभी के लिए दिखेगा। अभी 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 हमने उस लेवल का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। सर आप फिल्टर कीजिए क्लास 10 पे। दिखेगा माई सर, लर्निंग में ये- हमारे को माई लर्निंग में नहीं सर, वो माई लर्निंग में आपको वो वाले कोर्स दिखाएंगे की जो है। आप ऑलरेडी एनरोल किए हो। अगर Explore बाकी कोर्स courses जाना है है, तो आपको एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना है। नहीं, ये टीचर के लिए भी रहे तो सर अच्छा है, थोड़ा सा टीचर देख हाँ, पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही यूज हाँ। कर सकते हैं। इनके जो कंटेंट है ये भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो एक प्री टेस्ट ले रहे हैं हम, कि उसको थोड़ा बहुत पता भी है कि नहीं उसके बारे में। आगे जाके जब हमारा 6 to 8 भी बन जाएगा तो उसमें ऐसा होगा कि जैसे मैं क्लास 10th का कर रहा हूँ, क्लास 10th में कोई एक टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया कि एसिड के ऊपर, तो हो सकता है कि वो एसिड का टॉपिक क्लास 7th या 6th में पढ़ाया गया है, जी। तो मैं उधर वहाँ लेके पर ले जाऊंगा। बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, वो कौन लर्निंग बनता है? नहीं, ये हाँ ऐसे रिमेडियल लर्निंग, अभी एडेप्टिव लर्निंग बोल रहे हैं। कोर्स बनाने के लिए ब्रांचिंग और वो आता है। कोर्स बनाने का है। हाँ, कोर्स बनाने का ब्रांचिंग वगैरह जो आता है तो उसी पर आधारित है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस का मैं रैंडम आंसर दे रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज? व्हाट इज केमिकल चेंज। उसके बाद मैं आंसर दूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ Final ठीक submit. है, मेरा फाइनल सबमिट हो गया है। अब कीप ट्राइंग, हालांकि क्योंकि मैंने आंसर्स गलत दिया है तो ये मुझे बोल रहा है यू कैन डू इट। अब अगर मैं यहाँ पे रिव्यू करूंगा तो मुझे बताएगा कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ये भी है कि करेक्ट आंसर क्या है, और उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों गलत है। अब ये करेक्ट है, तो अब ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने तुक्का मारा, तो तुक्का मारने के बाद भी मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं ये सही है, बट इसका रीजन ये है। ये एक छोटा सा प्री टेस्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके सारे लेसन्स जो है, मेरा वीडियोस जो है, तो वो मैं देख पाऊंगा। तो जैसे ये 2 वीडियो देखने के बाद मेरे पास आ रहा है अब एक और असेसमेंट आ रहा है कि ये वीडियो देख के आपने क्या सीखा। जी जी। तब देखिएगा, मैं अगर आगे भी बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ेगा नहीं। अच्छा, So देखना young ही है। discoverers, कम I से कम have एक a बार medal तो for पूरा you. देखना है। Heat from the sun makes it. और सर एक भी होता था, आपको निष्ठा के लिए मालूम होगा कि हाँ। क्वेश्चंस यूट्यूब में भी मिलता था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक्स बना सकते हैं 100 क्वेश्चंस और का, random। और आपको रैंडमली उसमें से 20 मिलेगा। राइट, बल्कि निष्ठा के लिए भी किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। और यहाँ पे वो स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा। हाँ थोड़ा हाँ, जल्दी ठीक जल्दी है। देखना है Sticky तो। rice. अगर When आपको I जल्दी समझ में आ रहा तो freeze, जल्दी I कर turn लें। into ice. You may drink me for free, or I come with a prize. Who am I? Yes, you all have guessed it right. The answer is water.
Children, when water freezes, it becomes ice, solid. When ice melts, it's liquid. And on heating, तो मैम यहाँ पे क्या हुआ ना कि सेम आप सही बोल रहे हो, केमी विद्या के वीडियोस और दीक्षा के वीडियोस है, पर वहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट का लंबा वीडियो है। तो एक तो आज के बच्चे 20 मिनट 40 मिनट टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो और अगर किसी को थोड़ा सा ही पार्ट जानना है तो हाँ, उतना ही उसके वीडियो लिए देख लो। कर सकते हैं। बट क्योंकि वो इजीली एक्सेस होता है ना, तो इसलिए वो उसको ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब उसमें रिपीटेड है तो जी अब जब है तो कर सकते हैं, वो टाइप का रिपीट करता है। हाँ, अब मान लीजिए मैंने ये 2 वीडियो देख लिया, उसके बाद मैं फिर असेसमेंट दूंगा इसमें। Passing 50% लाना है। तो अगर सर जवाब पता है तो बता दीजिए। फिर मैं रैंडमली आगे बढ़ता हूँ, ताकि गलत भी होता है तो क्या दिखता है वो हमें दिखे। तो जी नहीं सर, H5P पे नहीं है ये, मॉडल के अंदर ही आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और हालांकि अगर आप H5P पे भी बनाएंगे तो भी ये प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट कर देगा। कहाँ पे सर? हाँ, आप अगर नहीं बना रहे तो थोड़ा बहुत इंटरैक्टिव आपका मॉडल भी बना देगा, जैसे यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस और ड्रैग एंड ड्रॉप भी मॉडल के अंदर भी पॉसिबल है। सर ये मुझे आइडिया नहीं है। सर उसमें और भी चीजें ना, कि जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ ये कंटेंट का इस आंसर ने मैंने क्या जवाब दिया, तो अगर H5P का एक फाइल बनता है तो वहां पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसके अंदर एक क्वेश्चन का किसने क्या जवाब दिया। अगर हम इन जनरल देखें तो हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब मेरे क्लास में 90% लोगों ने गलत दिया, तो उस तरीके का मैं एनालिसिस निकाल के नहीं लेके आऊंगा। ये एक रीजन हो सकता इसमें सुविधा उपलब्ध है तो उस पर क्या क्या सर है। जी एक क्वेश्चन है छोटा सा। पहले भी एक कोर्स मेरा एनरोल था, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, 100 सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया, हाँ। बट वो फिनिश्ड कोर्सेज में नहीं आ, क्या रीजन हो सकता और आपके तो कहाँ पे दिख रहा है? है? वो ऑनगोइंग में ही दिख रहा है और वहाँ पे 100% दिखा रहा है। हाँ, थोड़ा देर में आ जाएगा। उसमें एक चैलेंज है जो हम क्रिएटर लेवल पे होता है। एक जब कोर्स में सेट कर रहा हूँ, मेरे को लास्ट में एक सेक्शन आता है जहाँ पे एक क्रिएटर को टिक मार्क करना पड़ता है कि कौन से मॉड्यूल या कौन से सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा कि ये कोर्स कंप्लीट है। तो मे भी वहां पे कुछ एरर है। ये हमने भी फेस किया बहुत बार, हमसे भी मिस हो गया कि हमने सर्टिफिकेट जब कंप्लीट होगा तब टिक मारना चाहिए। क्या होता है कि सब या तो फिर सब में टिक लगा दिया या छूट ही गया, तो ये भी होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ तो एक तो यहाँ पे मुझे आंसर्स दिखा रहे हैं कि सही है गलत है, और सॉरी मैं अभी आप देखिए ये बोल रहे हैं कि ये जो एलो है, ये 2 एलो है जहां लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जहां पे मेरा क्वेश्चंस का आंसर्स गलत था। तो ये बोल रहा है कि ये 2 पार्ट आपको दोबारा जानना है, तो उसके लिए मुझे और 2 रिकमेंडेड कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हर एक चैप्टर पे ये काम करना है। तो मतलब सर रिक्वेस्ट है, अगर ये 2, क्योंकि एग्जाम टाइम है, आप लोग अगर अपने स्टूडेंट्स के या स्कूल्स में थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा। डीओ सर से लेटर निकलवा देते हैं। आप क्या चिंता करें, इट विल हैपन सर। जी ठीक है।
और आई होप आपके पास फोन में भी दीक्षा इंस्टॉल्ड है, तो उसमें से आप दीक्षा कोर्स कैसे जाएंगे वो भी प्रोसेस आपको पता ही होगा। हाँ, दीक्षा कोर्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल जी दोनों इंस्टॉल जी जी दो, अब तो दो ऐप हो किया गए, भी है बहुत सारा। दीक्षा और दीक्षा कोर्स जी है। उसमें किसी को कोई चैलेंज है वो दीक्षा कोर्स में ले जाने के लिए? नहीं, कोई चैलेंज नहीं। सर मैं सबको पूछ रहा हूँ, जैसे आपका नहीं, सर sorry, प्रॉब्लम sorry, था प्रोफाइल बनाने में, कोर्स क्रिएट करने में, अगर सबके सबके पास फोन में दीक्षा कोर्सेज या दीक्षा क्या करना सर? आपके फोन में है दीक्षा? सर आप एक बार जीमेल आईडी दीजिए सर। जीमेल आईडी आपको ऑलरेडी लॉग इन है। लॉग इन कीजिए। ये आपका एरर है, तो अगर अब इससे भी सर लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन विद गूगल। ये हो जाएगा। हाँ हाँ अभी आप और अगर आपको दीक्षा कोर्सेज में जाना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। हाँ ये है एक नया ऐप होता है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा, ये ऐप आपको इंस्टॉल करना। अभी अभी तो मतलब नहीं तो आप कोर्स फोन में नहीं कर। हाँ अच्छा अभी ये पूछ रहे हैं प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, तो आप देखिएगा आपका नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं। ये चीजें थोड़ा सा फिल सेलेक्ट रोल में हाँ सर मेरा अब अगर जैसे ये कोर्स तो आप जाएंगे तो एक एक करके सर आप मेरी प्रोसेस करते हैं क्योंकि आपके ने आधार सिलेक्ट किया था ना, ये सर कोई बात नहीं, आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ो। हाँ इसी को सिलेक्ट करिए। हाँ तो बहुत पहले में डाउनलोड कर लिया थोड़ा सा और इंटरनेट का भी यहाँ पे एक्चुअली सिग्नल ही नहीं आता। हाँ आप सर लोग भी डाइट पे डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिए। इतना नहीं चाहिए होगा, ये रेड मार्क नहीं है, ये सब नहीं चाहिए। अब आप नेक्स्ट कीजिए। सर आप सरनेम आपका इसमें लेके जाइए। हाँ इसमें लेके नहीं ठीक है चलिए। अब आप डेट ऑफ बर्थ से इसीलिए आपका हाँ 68 है, तो अभी 68
प्लेटफॉर्म अलग अलग है सर, आपको दोनों ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि लॉगिन अभी भी पुराने दीक्षा से ही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं जो ऑलरेडी दीक्षा में रजिस्टर्ड हैं। अब उनको हम बोल रहे हैं कि आप उसके थ्रू आप टेक्स्ट बुक के भी कंटेंट देखिए, उसके साथ आप कोर्सेज भी। हाँ हाँ जी, ये न्यू जैसे ही आप एनरोल करेंगे वो चीज आपके माई लर्निंग के सेक्शन में आ जाएगी। आप पहले क्लिक कीजिए कोई भी कोर्सेज पे। हाँ, आप एनरोल नाउ कीजिए। माई लर्निंग के अंदर आपको दिखा रहा है, अब आप इस पे क्लिक कीजिए और लेसन्स में जाइएगा तो आपको ये कोर्स का वो सारा दिखेगा, जैसे प्रीटेस्ट हो गया, उसके बाद वीडियोस आएगा। तो जब आप ये खत्म करेंगे उसके बाद आपका वीडियोस हाँ हाँ, ये आपको अब कोर्स इसमें से चूज करना है। जैसे ये तो आपने एक ऐसे इनरोल किया, अब आप मान लीजिए आपको देखना है सिर्फ एनसीईआरटी के कोर्स, तो अब एक्सप्लोर कोर्सेज में जाके यहाँ पे एंटर कीजिए और ये एनसीईआरटी सुपर आ रहा है, अप्लाई कीजिए तो एनसीईआरटी के कोर्सेज। जी जी हाँ जी, आप दीक्षा ऐप ओपन कीजिए। गौरव, किसी को और कुछ इशू है सर? क्रिएट कैसे करना है सर? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके पहले आपको आपका वीडियोस वगैरह रेडी करके लाना पड़ेगा, असेसमेंट आपको रेडी करके लाना पड़ेगा, आपको डिजाइन रेडी करना पड़ेगा कि कौन सा आपको प्री टेस्ट रखना है कि नहीं है, कौन सा मॉड्यूल पहले रखना है। हाँ नहीं ऐसे नहीं, तो पहले आपको रेडी करना पड़ेगा। हाँ रिव्यू होगा, फिर हम उसका ईमेल आईडी अपना आपको कौन मतलब पुराने दीक्षा आपको कौन करता है ये है दीक्षा में तो ऐसा कुछ करते नहीं। पुराना दीक्षा के थ्रू हमें नहीं दिखेगा सर। ये एक्सप्लोरर पे ही जाना है। दो ईमेल्स होते हैं इसमें अलग अलग, रेटर का अलग, रिव्यूअर का अलग। सर आपको इसमें आना पड़ेगा, आप एज ए टीचर नहीं देखेंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे ऐसे इसमें जाना है, माई लर्निंग में कौन सा कर दिया डाइट्स ये अभी कोऑर्डिनेटर कर सकते हैं। वैसे सर इसके ऊपर आपका कोर्सेज डिपेंड नहीं करेगा। हाँ माई लर्निंग पे क्या जी जी हाँ जी 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 सर वही हम चीजें बातें कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए अगर मैं आया और आप ही आपके बगल में बैठे, कितना कुछ एंट्री करना पड़ रहा है। तो लड़ना डिस्ट्रिक्ट डालेगा कि पढ़ाई करेगा? नहीं, डेटा तो सर हमें भी देना पड़ता है, इसीलिए एक ऑप्शन हमने पहले भी बात कर रहे थे, अगर स्टेट के पास कुछ इस तरीके का लॉगिन सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, सेम वही चीज आप यहाँ पे लेके आओ जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिखा। तो जैसे आंध्र प्रदेश इतने सारे कोर्सेज चला रहे हैं, वो नहीं आके पूछते हमें कि डिस्ट्रिक्ट का वो लगाओ, जो आ रहे नहीं आ रहे उसको कोई लेना देना नहीं। उनके यूजर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, टीचर्स अपना कोड डालते हैं, उनको वो कोड का आईडी मिल जाता है और उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि ये मेरा टीचर है, ये कौन से क्लस्टर में ब्लॉक में है, वो सारा डिटेल्स उनको मिल जाता है। तो वहाँ सर एक्सक्यूज मी जी मतलब आंध्र प्रदेश मतलब इससे उसको लिंक कर दिया। जी सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है
अगर आप मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर मैं होम पे जाता हूँ और मैं प्रोफाइल में गया, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम। आपको फोन में भी दिखेगा सेम चीज। तो लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम जैसे ही करेंगे, आपके स्टेट के सिस्टम का यहाँ पे लिस्ट दिखा है। तो आंध्र प्रदेश के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है, WCD डिपार्टमेंट का भी है, कर्नाटका का है, मध्य प्रदेश का है, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश का 2 है। और ये एक हमने यूपी के साथ टेस्टिंग पर्पस के लिए अभी के लिए रखा है। तो इस तरीके से स्टेट अपना मतलब हर एक टीचर को मैनेज कर पा रहा है उस ब्लॉक से। स्टेट आईडी से लॉग सर इसके साथ स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज है, अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज, आप लोगों ने आस्क दीक्षा देखा है? दीक्षा के ऊपर देखा जी। तो आस्क दीक्षा नथिंग बट चैट जीपीटी टाइप। एक्चुअली पीछे जीपीटी यूज हो रहा है, 4.0 वर्जन यूज हो रहा है। और वहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ एनसीईआरटी के ही टेक्स्ट बुक फीड है और स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और कंटेंट नहीं मिलेगा। तो मैं दोबारा एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। और अगर आप फोन में भी है, जो पुराने दीक्षा ऐप है उसमें आप देखिएगा एक छोटा सा नीचे बटन आ रहा है, एक लेडी है बट आज दीक्षा करके। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ और ये अभी अराउंड 12 लैंग्वेज में मुझे जवाब देता है। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, ऐसे करके 12 लैंग्वेज में। इस पे हम प्रेस करके वहाँ पे एक रेड कलर का बटन भी आ रहा होगा जहाँ पे हम वॉइस बेस्ड भी पूछ सकते हैं और टाइप करके भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इसमें व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये कुछ टाइम लेगा और मुझे आंसर देगा। और आंसर देने के बाद अगर रीड अलाउड भी ये करेगा और नीचे वो citation is a vital system in the body responsible for the process of breathing and gas exchange. It ensures a continuous supply of oxygen to the body. और ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से चैप्टर या कौन से क्लास के, तो वो टेक्स्ट बुक का वो पीडीएफ भी खुल जाएगा कि कहाँ से उसने ये आंसर पुल किया। और अगर मैं इनकेस ये पूछूं तो मे बी यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए कोई तो बुक दे रहे हैं। हाँ, नॉट ऑल बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान लीजियन ऑफ फैंस, तो ये है, आप देखिए। और अगर मैं ये पूछूं हाउ इज टुडेज, तो ये बोलता है प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट। और अगर मैं ये भी पूछूं कि हिंदी में पढ़ाई है, जी। और टीचर्स के लिए भी ये यूजफुल है, यहाँ पे आप लेसन प्लान्स वगैरह भी बना सकते हैं। और जी, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि
फोटोसिंथेसिस के ऊपर 5 MCQ दीजिए। तो मुझे इसका क्वेश्चंस भी आपको बना के दे सकते हैं, टीचर्स भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये जो भी स्टेट लैंग्वेज में वो जैसे उड़िया हो गया, मराठी हो गया, उसमें क्या है? जी आपको 12 लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। आप बताइए कौन से लैंग्वेज में आपको उड़िया में कर रहे हैं? आपका इनपुट भी उड़िया में दे सकते हैं। हाँ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାରେ ଘଟିଥାଏ। ये बोलेगा भी उड़िया में या बोलती है शायद। ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନତଃ ପତ୍ତାରେ ଘଟିଥାଏ। ଟିକେ ଟିକେ ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। पत्ता को पत्र କରିବ, वो पत्ता को अगर पत्थर करेगा तो अच्छा होगा। सर ये मतलब वो बेहतर हो सकता है आगे बिल्कुल भविष्य में। बिल्कुल कुछ तो लिमिटेशंस है। बिल्कुल हाँ समझ तो आ रहा है। हाँ पूरा समझ में पूरा है, लेकिन हम आगे जाके अगर बेहतर बना सकते हैं तो अभी जी गूगल ट्रांसलेटर में हुआ है वो तो भाई कंटेंट नहीं सर उसमें गूगल ट्रांसलेटर में इशू है सर, वो आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा और फिर से अरेंज करना पड़ेगा। आपने अपलोड कर दिया गूगल ट्रांसलेटर, वो इशू है सर, वो अपलोड नहीं वो नहीं करते। सर इसीलिए ना एक ट्रांसलेशन सेल करके अलग सेटअप ही बनाया गया सीआईटी में अभी मतलब पिछले साल ही चालू हुआ है। तो एआई ट्रांसलेशन हो भी रहा है, तो फिर भी एक बार ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें आ रहा है। एआई वो वर्ड बना वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ 2-3 वर्ड लेके वो भी बना इंडिया में वैसे वर्ड नहीं। तो सर रिक्वेस्ट है ये भी आप लोग जरा प्रमोट कीजिएगा इसको। अभी एग्जाम टाइम है और अभी हम मीटिंग करके आ रहे हैं, तो इसके लिए और भी सोच है। जैसे अभी हम यहाँ पे ऐसे पूछ रहे हैं ना वॉइस के साथ, तो वॉइस में ही डायरेक्ट जवाब दे दे, उस तरीके का एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव बच्चों के साथ हो जाए। तो ये सिर्फ वैसे बच्चों को हेल्प नहीं करेगा जो क्लास में कम सवाल पूछते हैं। आपके जो भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, डिसेबिलिटीज, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो और एक और फीचर है, वो भी एआई फीचर है। यहाँ पे आप देखिएगा एक वीडियो बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे एक वीडियो बोल के ऑप्शन है। अगर आप डिजिटल टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं, फोन में भी आप देखेंगे ऊपर एक आता है कि सर्च वाला ऑप्शन, जो पुराने दीक्षा का ऐप है। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता है ऑल और एक वीडियो करके। तो वहाँ पे अगर आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करता है, आपको अगर स्पेसिफिक कुछ कंटेंट का पार्ट सर्च करना है कि मुझे सिर्फ कोल जो वर्ड है कोयला, मुझे सिर्फ उसके बारे में जानना है, तो ऐसा नहीं कि मुझे पूरे दीक्षा में वीडियो छान के फिर उसमें से मैं देखूंगा। ये मुझे डायरेक्ट सर्च करके दिखाएगा। जैसे मैंने कोल सर्च किया तो कोल एंड पेट्रोलियम या जो भी सबसे रेलेवेंट वीडियो है एनसीईआरटी टेनेंट के अंदर वीडियोस में, तो वो दिख जाएगा। और आप अगर ये वीडियो चलाएंगे तो वो स्पेसिफिकली उसी सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए 18.9 सेकंड से ही स्टार्ट हो रहा है। Nature is limited. Examples are forest, coal, petroleum, natural gas, etc. Children, now I have a very interesting story of coal to share with you. तो ये कोल के बारे में बताना चालू हो गया। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पीछे का वीडियो देखूं, आगे का करूं, मैं खुद सर्च करूं। ये थोड़ा सा और इजी हो जा रहा है।
पहले कीवर्ड बेस्ड आप लोगों ने भी हर एक कंटेंट जो अपलोड करते हो उसमें कीवर्ड्स आप लोग देते हो, पर वो मतलब वीडियो के अंदर क्या कीवर्ड है एग्जैक्टली कहाँ से सर्च हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी थ्रू एआई दीक्षा के अंदर एक नया फीचर आ गया है। तो एआई के साथ ये मोटा मोटा हमारे पास कोर्सेज का है। और सर और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इश्यूज है रजिस्ट्रेशन को लेके या कोर्स करने में। सर एक दो कोर्सेज, एक कोर्स का मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग अगर एनरोल कर लीजिएगा। कुछ सर ने ऑलरेडी कर लिया है, एक युवा एआई का कोर्स है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर करूँ, सेकंड पेज भी एआई चल रहा है, वो भी अच्छा है। हाँ तो हाँ वो तो उनके थ्रू है। और बाकी ये एक सर युवा एआई फॉर ऑल करके कोर्स है, ये माइटी का डेवलप्ड है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं, अभी तो इंग्लिश में है और अलग लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेशन एआई के थ्रू हुआ है। तो एआई के थ्रू और विद आपके लिप सिंकिंग, मतलब आपको लगेगा कि आप हिंदी में ही बोल रहे हैं, तो उस तरीके से वो ट्रांसलेट हुआ है, वो भी हम लेके आ रहे हैं। अभी अभी के लिए इंग्लिश में है, तो आप लोग प्लीज इसमें भी एनरोल कीजिएगा, ये भी कोर्स करना। और सर कुछ इशू है, कुछ सजेशन है हमारे लिए? सबके सिस्टम में मतलब दीक्षा एनरोल है, प्रोफाइल कंप्लीट है, सब कोर्स कर पा रहे हैं? कोई ऐसा है जिनको कुछ इशू है? कोई बात नहीं मैम, मैं देख लेता हूँ। सर ये भी एक चैलेंज है, हम भी स्टेट से पूछ रहे हैं कि आप जो भी लेटेस्ट डिटेल्स है वो शेयर कीजिए। तो सर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंजेस हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स का भी आपको नाम नहीं दिखेगा क्योंकि जी जी मर्ज हुआ है। अब मर्ज अगर हो गया तो मान लीजिए आप जिस स्कूल में आपने एनलिस्ट किए थे और आपका स्कूल मर्ज हो गया, तो आप कौन से स्कूल में गए वो भी हमें डिटेल्स चाहिए होगा ना, तो वो सर एक चैलेंज है। मैम अगर आपके फोन में चल रहा है, हाँ ठीक है। अभी आप पहले आपके पर्सनल डिटेल्स जो है वो डाल दीजिए इसमें। अच्छा ये स्पेस आ उसमें एरर मैसेज भी दे रहा था। हाँ ये फिर आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे बच रहा है, जो भी आपका रेट मार्क है आपका बच रहा है यहाँ पे। टीचर एजुकेटर डाइट हाँ ऐसे तो स्कूल भी अच्छा ये भी चश्मा है क्या? प्लीज प्रोवाइड वैलिड प्रोफाइल टाइप। क्या था वो?